chemical basis of the consciousness. Otherwise, we will never understand even the how consciousness is capable of doing so many wonders in the case of the human beings. So that is my submission. Thank you. Thank you so much, Dr. Pradhan. Uh, I hope it answers the question. Am I audible to everyone? Yes. Okay, great. So, moving on with the agenda of the program here. Now is the time for the vote of thanks, and it has to be given by Srimati Aisha Sharma. So I would request Srimati Aisha Sharma to please turn on your mic, and let's go ahead with the vote of thanks to our speakers. Am I audible? Yes, ma'am, you are perfectly audible. Thank you very much. And so I must mention our deep sense of appreciation for Professor Rajesh Raj and Srimati Rachna Raj for their elaboration of Ritanvenshi and Ritambra and giving us a brief about Ritambra's vision and mission. So going ahead, we are grateful to Professor R.C. Pradhan for demonstrating his speech on deep philosophy and spirituality. It was a wonderful knowledge spread by you, sir, about Adhyatmak Vidya and human consciousness, yoga, and science of spirituality. I may like to express our sincere thanks to our editor-in-chief, Dr. Saroj Kant, for giving us excellent coverage on Ritambra magazine, Buddhism, Vedanta, spirituality, and Ayurveda. Going ahead, I also wish to express my gratitude to Professor Nilima Mahato for providing us knowledge on the endocrine system and behavioral health, interconnection between our thoughts and chemistry, and enlighten us on how we can bond between spirituality, science, and enhances our inner spirit. So I'm very grateful to everyone. And thank you so much, everyone. It was a very nice speech by all of you. So we will have a I think 15-20 minutes of break here, right, Pratik? And we will be meeting again at 12, right? Just a moment here. We had a presidential address by Professor Rajesh Raj. My deepest apologies. I actually missed that point. So before moving on to the break, we still have 30 minutes, and I think I would like to invite Professor Rajesh Raj to give us the presidential address. My deepest apologies for missing that. It's okay. Thank you. Sometime it happens. Well, I got many messages that people want to listen in Hindi also. Maybe many of the North Indian Hindi people who joined us, they couldn't understand our talking. I would like to speak in Hindi if you don't mind. आप सभी लोगों का स्वागत है. आज हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा के गहरे आयाम को समझने के लिए आप लोगों को सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. हम लोग बहुत कृतार्थ हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर प्रधान हैं जिन्होंने योग, मानवीय चेतना और चेतना के विभिन्न आयाम के प्रति अपने गंभीर वक्तव्य में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई. विशेष रूप से जब वो समष्टि और व्यष्टि का व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना के बीच में जो भी तार्किक और आध्यात्मिक सहसंबंध है उसको बड़े सुंदरता से उन्होंने हमारे सामने रखा. प्रोफेसर प्रधान, आप योग के विषय में हम लोगों को ये बताए कि हम लोगों को योग के सभी पक्षों को देखना चाहिए. योग जहाँ पर एक स्वास्थ्य के रूप में सामने है, उसी प्रकार से मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी उसका प्रभाव है. आपने हमें बताया कि किस प्रकार से
हमें चेतना को आध्यात्मिक रूप से, उसके सभी आध्यात्मिक आयामों को समझने के लिए हमें उसके गहरे पक्ष को भी देखना चाहिए। योग सूत्र में समाधि का अर्थ, योग का अर्थ समाधि ही बताया गया है। इसके अलावे आप हम लोगों को कैसे अपने जीवन में इसको ला सकें, उसके लिए एक बहु उपयोगी बहुविध आयाम आपने सामने में रखा। आपके बाद डॉक्टर सरोज ने अपने एडिटोरियल स्पीच में आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे योग हम अपने सामान्य जीवन में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। योग और अध्यात्म को केवल ध्यान और मोक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और संसार के कई अन्य विधियों के लिए भी उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और संभवतः ऋतंभरा पत्रिका इसी बात के लिए बनाई गई है। इसमें वो हर प्रकार के आलेख स्वीकृत किए जाते हैं, जिससे हमारे जीवन न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक जीवन को भी कैसे सुदृढ़, सुविकसित और सनातन धर्म के अनुकूल बनाया जा सके, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। आपने सारे आर्टिकल्स जो इस मैगजीन में रखे हैं वो वाकई पढ़ने योग्य है। मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस मैगजीन को ज़रूर पढ़ें। इसके हर एक आर्टिकल में इनके ऑथर्स ने, इनके लेखक ने अपनी सभी बातों को जो उनके जीवन में, उनके दर्शन में, उनके सोच में है, उसको व्यवहारिक रूप से रखने का प्रयास किया है। आपके बाद डॉक्टर नीलिमा ने अपनी बातों को बहुत ही संक्षिप्त और सारांश में रखा। वैसे विषय तो उनका इतना विशाल है कि वो कई घंटों में भी यह पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन आपने बहुत सरल और सहज वे से गंभीर रासायनिक इक्वेशंस को आपने सामने रखा और समझाने की कोशिश की कि हमारा बिहेवियर और भीतर होने वाले केमिकल्स कैसे एक दूसरे के परस्पर सहसंबद्ध हैं। आपने अपने वक्तव्य में यह प्रश्न छोड़ दिया कि यह केमिकल चेंजेस जो हमारे भीतर होता है, रासायनिक परिवर्तन और हमारे बिहेवियर, इसमें कौन प्रथम होता है, इस विषय में आपने प्रश्न हम पर छोड़ दिया। पर आप ये बताते हैं कि विचार ऊर्जा की भांति एनर्जी की तरह है और अगर हम अपने भीतर दृष्टा भाव लाएं तो उसको भीतर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक बहुत प्यारा सा सुझाव था कि आप रिएक्ट करने के बजाय रेस्पॉन्ड करें, यानी कि जब हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर देते हैं तो उससे जो हमारे स्ट्रेस और जो भी आपने केमिकल इक्वेशंस बताए, उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। बजाय इसके जो एक सर्वमान्य जो यौगिक प्रैक्टिस है कि हम दृष्टा भाव अपने अंदर विकसित करें, उसको वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करते हुए आपने यह बताया कि यह केमिकली भी कितना अप्रूव्ड है कि अगर हम अपने भीतर रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्ड लाते हैं, दृष्टा भाव लाते हैं, तो कैसे हम अपने सिचुएशन को भली भांति और अच्छे तरीके से उसको सुधार सकते हैं और बड़ी सफलता से हम अपने जीवन को एक सफल रास्ते पे ले जा सकते हैं। ये सब बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जीवन में जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, जो भी हम श्रोतागण वर्षों से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे, आप जैसे विदुषी विद्वान हम जब हमारे सामने अपनी बातों को अपने अनुभवों के साथ रखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो धीरे धीरे हमारे रक्त में उतरता जा रहा हो। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। इस विषय में 2-3 बातें मैं आप सब लोगों को अपनी बातें कहना चाहूँगा कि जब ऋतंभरा, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप म्यूट कर लें बाकियों को। मैं जब ऋतंभरा मैगजीन के विषय में सोचता था और मैं अपनी टीम के साथ विचार विमर्श करता था, तो पहले मेरे मन में आया कि मैं इसे पूर्ण रूप से दार्शनिक पक्ष इसका सामने रखूं। लेकिन
फिर समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो दर्शन को कम समझ पाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो उनके जीवन में आवश्यक हो। इसलिए इस पत्रिका में हम लोगों ने उन सारे एरियाज जो भी दार्शनिक पक्ष हैं उसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इस पर हमने जोर दिया। ये प्रयास वास्तव में एक ऋतान्वेषी प्रयास है, और जैसा कि प्रोफेसर प्रधान ने बहुत ठीक ठीक समझा और समझाया, ऋत अन्वेषण, ऋत यानी सत्य, शाश्वत सत्य, सनातन सत्य, जिसको हम ऋत कहते हैं, उस ऋत के प्रति अन्वेषण, उसका शोध, उसको खोजना, सत्य के खोजी। सत्य का खोजी डॉक्टर नीलमा जैसा एक वैज्ञानिक भी हो सकता है जो एक केमिकल साइंस के माध्यम से सत्य को ढूंढ रहे हैं। खुद प्रोफेसर प्रधान ने बताया कि हम विज्ञान के माध्यम से भी उसी सत्य को ढूंढते हैं। हम दर्शन में बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तरों को ढूंढते हुए, ज्ञान योग करते हुए, चिंतन मनन निधिध्यासन करते हुए भी उसी सत्य को पाते हैं, उसी सत्य की ओर बढ़ते हैं, जिस सत्य को एक योगी, जिस सत्य को एक ऋषि अपने अंतरीम ध्यान से पाता है। जब हम खोज करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जब हम अनुसंधान में उतरते हैं तो हमारा समर्पण उस अनुसंधान के प्रति अपने आप हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो आप एक योगी हो जाते हो। योगी के लिए नितांत आवश्यक है कि आप एकाग्र हों और समर्पित हों। ये दो अनिवार्य शर्त आपके पूरे हो जाते हैं जब आप अनुसंधान में, जब आप अपने अध्ययन में और अपने विश्लेषण में उतरते हैं। और इसी बात का फायदा हम सबको मिल रहा है कि आप लोगों के अनुभव और आप लोगों का विश्लेषण आज हम लोग को प्रसाद के रूप में, एक आध्यात्मिक प्रसाद के रूप में हम लोग को उपलब्ध हो रहा है। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि ऋतान्वेषी एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें हम उन सभी पुरातन पद्धतियों को, प्राचीन सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो हमें निश्चित रूप से सही दिशा प्रदान करे। और इसके लिए हम लोग ने एक विचार किया है, एक विशाल लेबोरेटरी का, एक प्रयोगशाला, एक शोध संस्थान, जिसका नाम भी रखा हम लोगों ने परामानस विज्ञान शोध संस्थान, जिसमें हम लोग केवल मानस ही नहीं, परामानस पर भी अध्ययन करेंगे। अभी किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रोफेसर प्रधान ने कहा कि सभी प्रश्नों का जवाब संभवतः रसायन विज्ञान न दे पाए। रसायन विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। संभवतः एक दिन रसायन विज्ञान भी वैदिक भाषण बोलने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जिस प्रकार से केमिस्ट्री प्रगति कर रहा है। परंतु ये एक अवश्य है जो एक ऐसा शोध जिसमें कि अब ये मालूम चला है कि जिससे अब तक जितने भी मॉडर्न साइकोलॉजी हम जानते थे, ये साई फंक्शन की जो सिद्धांत सामने पैरासाइकोलॉजी में सामने आई, जो 100 वर्ष पहले डॉक्टर जे.बी. राइन ने शुरू किया था, 1938 में उनका पहला रिसर्च आया था, उससे लेके आज तक जो पिछले 80 वर्षों में साई फंक्शन ऑफ ब्रेन का विकास हुआ, पैरासाइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उससे ये तो पता चलता है कि अभी ब्रेन केमिस्ट्री में केमिकल साइंटिस्ट को बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ जानने के लिए है। उनका जो आकाश है वो बहुत विस्तार में है। उन्हें बहुत कुछ समझना है हमारे बहुत सारे फंक्शंस को जो अभी तक नहीं समझे जा सके हैं। पर यह भी बहुत उचित है कि जो समझ के भी नहीं समझा जा सकता है, जो जान के भी नहीं जाना जा सकता है, जो बता के भी नहीं बताया जा सकता है, ऐसे विज्ञान को जान लेना, ऐसे विज्ञान को समझ लेना, ये अपने आप में अध्यात्म है। हो सकता है कि मनुष्य अपनी प्रतिभा का विकास करते हुए, विज्ञान का विकास करते हुए रसायन के उस क्षेत्र को, उस सीमा को पार कर ले जहां पर अणु और विभु की सीमाएं हैं। तब भी ये अवश्य है कि उस परम सत्य को, उस ऋत को ना कहा जा सकता है, न समझ के बताया जा सकता है।
संभवतः इसी वजह से जैन धर्म में स्यातवाद की स्थापना हुई है। महावीर जैन, जिनको सर्वत्र सर्व ज्ञान होने के पश्चात वो कहते रहे स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति च, उन्होंने प्रोबेबिलिटी की भाषा छोड़ी नहीं। और हम भी ये कह सकते हैं कि सब कुछ समझ लेने के बाद भी जो जाना नहीं जा सकता है, जहां नेति है, जहां पर जो अनिर्वचनीय है, उस सत्य को, उस सनातन सत्य को समझने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। इसलिए ऐसे विशाल हम लोग शोध संस्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजनों का, आदरणीय जनों का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा कर पाएंगे। ऋतान्वेषी का दूसरा उद्देश्य है न केवल शोध संस्थान बनाना, बल्कि वो सारे अभ्यासी, वो सारे सिद्ध, वो सारे लोग जो कहीं अपने जीवन में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नाना प्रकार की सिद्धियों को, नाना प्रकार की तपस्या को करके जो कुछ अपने जीवन में, अपनी चेतना में ग्रहण किए हैं, उन लोगों को हम सामने लाएं, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें कुछ ऐसी बातें हो जो समाजोपयोगी हो तो उसका प्रोपगेशन भी हो। इसलिए हम लोग पूरे दुनिया भर से वैसे विशिष्ट लोग जिनके अंदर में कोई क्षमता है, जिसके अंदर कोई आध्यात्मिक या किसी प्रकार का ऐसा विशेष गुण है जिससे कि समाज उससे लाभान्वित हो सके, हम उन लोगों को हमेशा अपने मंच पे बुलाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि उनको वो सम्मान दें जो हम हर एक बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है। बुद्धिजीवी केवल यूनिवर्सिटी से नहीं निकलते, सिद्ध डिग्रीज और डॉक्टरेट से नहीं बनते, वो अपनी तपस्या से बनते हैं। आज हम आप को सुनने वाले 10 लोग हैं, इसलिए हैं कि हमने और आपने तपस्या की है और तपस्या का ही मान है। और ऐसे बहुत सारे तपस्वी जो शायद जिनको डिग्री न मिला हो, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट न हुए हों, लेकिन शायद किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी वैसे क्षेत्र में हो जहां उनको कोई मान सम्मान न मिला हो या जनोपयोगी होने से वो बच रहे हो, तो ये ऋतान्वेषी का कर्तव्य है कि हम उन लोगों को अन्वेषण करें, उनकी खोज करें, उनको सामने लाएं और आप सबके समक्ष उनको रखें ताकि उनकी सिद्धियों का और उनके ज्ञान का लाभ लोगों को मिल सके। कई प्रश्न उठाते हैं कि क्या सभी सिद्ध लोग सामने आना पसंद करेंगे? क्या साधु लोग अपने कीर्ति के लिए, अपने नाम के लिए सामने आना पसंद करेंगे? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं संभव है, परंतु ये जरूर संभव है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से हम लोग कुछ ऐसी चीज अपने लैब में क्रिएट कर सकेंगे जो कि समाज उपयोगी हो। इसी उद्देश्य से ऋतान्वेषी की स्थापना की गई थी। ऋतान्वेषी फाउंडेशन एक समाज उपयोगी लोक सेवी संस्था है। हमने इस पर एक प्राइवेट लिमिटेड भी बनाया ताकि पैसे का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। हम सब बहुत गहरे से प्रयास करते हैं कि हम आप लोग के हृदय तक उतर सकें और सनातन धर्म जो लगभग छूट चुका है जनमानस में, उसको हम लोग पुनर्स्थापित करने के हर वो वैज्ञानिक तरीका, हर वो व्यवस्था जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने नाना प्रकार के कमिटीज़ बनाए हैं जो न केवल योग विद्या की है बल्कि वैदिक कला, जिसमें 64 कलाओं का ज्ञान और विज्ञान, 64 कलाओं के बारे में जब आप जानेंगे तो बड़ा हर्ष होगा कि हमारे लोग कितने विकसित, हमारा समाज कितना विकसित रह चुका है। हम लोग समग्र स्वास्थ्य पे कमिटीज़ बनाए हैं, हम लोग पुस्तकालय, पत्रिका शोध संस्थान की कमेटियां बनाए हैं, हम लोग नाना प्रकार की कमेटियां बना रहे हैं ताकि हम अपनी बात को लोगों तक रखें। हमारे साथ आचार्य वर्ग, गुरुजनों का संयोग हो सके, उनका आशीर्वाद मिल सके। और आज जब ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अपने यहाँ होते हुए देख रहे हैं तो मेरा मन गर्व से भरा हुआ है कि हमारे पास आए हुए सभी लोग जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सब ऋतान्वेषी हैं
और रितान्वेशी के अपने पन्नों पर सदैव सदैव स्वर्णाक्षरों से लिखे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. And I am also very grateful to you, to Professor Rajesh Raj, and very special thanks to you, sir, for enlightening us with your knowledge and to encourage everyone have a read on our Ritambara magazine. It was a wonderful session about Rit, Satya, Sanatan, and Adhyatm, and very nice explanation regarding our different types of committee that what we are forming currently, and it is always very nice to hear you, sir. Thank you so much. So now we have a break here, and it will be around a 15-20 minutes of break. We will be meeting again around 12:15. Right, so Pratik sir? Yes. You're absolutely right. So to be precise, we have that 25 minutes of break. Let's all meet at 12:15, and we will have the welcome and introduction by starting the symposium by Mrs. Jayashree. So meet you guys again here. Thank you so much. Thank you so much. So welcome back again, and we will begin with our Ritambara Conference 2020 with the symposium session. So we have among us Dr. Sushin Dubey, recently working as a professor, Department of Philosophy, and Nav Nalanda Mahavir, deemed to be University, Ministry of Culture, Government of India at Nalanda, Bihar. Before this, he was working as a program officer in Indian Council of Philosophical Research, Ministry of Education, Government of India, New Delhi. Taught philosophy and yoga in Yoga Center, Rani Durgavati University, Jabalpur, and Morarji Desai National University of Yoga, autonomous organization under the Ministry of Ayush, Government of India, and Government Autonomous MEC College, Jabalpur, at various capacity. Dr. Dubey has been recipient of university, 3 gold medal, 3 national fellowship, best book award of his book, Kautilya Arthashastra from ABDP, and honor certificates from NDNIY, Ayush Ministry, New Delhi, 2007. Also, Dr. Dubey has been figured in India Today, National Magazine in 2008. He is associated with many noted organizations in different capacities. We welcome you, sir, to Ritambara Conference as a chief symposiast. We have Dr. Malcolm R. Printer. We invite Dr. Malcolm Printer to the conference. He is a real practitioner of the teaching of the Buddha, and he has experiential knowledge of the meditation. His PhD was in effectiveness of Vipassana meditation of all ages. He was pursuing his studies in Massachusetts that would have led to PhD in artificial intelligence. After learning meditation with a Buddhist monk over there, he changed his life, of course. Hence, he discontinued his study to return to India to end human hunger. Thereafter, he learned Vipassana meditation after he encountered a crippling heartbreak. He now teaches meditation to children and Vipassana meditation to adults in one-day courses. He believes that there is no greater joy than to understand, practice, and disseminate the Buddha's teaching, which are a panic for all suffering. This August conference welcome you, sir, as a guest, and request you to share with us your experiential knowledge. Going ahead, we have among us Dr. Prashant Kumar Panigrahi. He is Associate Professor in Philosophy in Jatni College, Odisha. His MPhil works was Neo-Ethics in Analytical Study, and his doctoral work is based on Rajti Raja Yoga.
the concept and the cult. He has long dedicated practice of Ananda Marg, and a spiritual movement that conjoins yoga and tantra for all, household and whole sannyasins. We welcome you, sir, to our conference. We invite you, sir, and request you to share with us about the Yoga Tantra in Anand Marga and as a symposiast. So I would like to hand over to Dr. Rajesh Raj to welcome all of them. Sir, please unmute yourself. Yeah, thank you, Aisha. I cordially welcome to the eminent professors here, and I would like to invite first Professor Sushim Dubey, and he could put some their ideas and paper in front of us. Please, Dubey sir. Thank you so much, Dr. Rajesh Rajji and Dr. Aisha Sharma ji for introducing me and this whole program, which is meant as a Ritambra National Conference organized by the Ritambra Private Limited, and a reputed and widespread organization in India and abroad towards propagation and promotion of the yoga and Indian culture in light areas, as I understand. So in this program, in this current schedule, the symposium, which is particularly I am invited or I am supposed to talk on yoga philosophy, and as I have also discussed that within Hindi and English, if it comes from the tradition, from the Yoga Sutra, and as well as the modernity, as well as the national education policy. So all these areas within this 20 minutes of a small little span of time, I shall try to go over. So let me begin. The yoga is very impressive, very potential, energetic, active, and transforming subject, not only subject, but it is an area where those who are dissatisfied or could not achieve up to the realm, up to the ideas, up to the level, up to the their aims and objectives or their health levels, those they do come to the area and they do get fulfillment, their satisfaction, not only in terms of their mental or spiritual, their inner seeking, but as well as their health and disorder and disease, perhaps at that level also. So this there, what the yoga is facilitating, what the yoga is potential, and what is yoga about itself by its very name, or by its very, these two word yoga, it is very significant in that meaning. Means whatever is deficiency, whatever is the achievement, whatever is the whatever are the aspirations, to unite with them, to union with them, or to go up to them, that is what is the yoga. And all these are comprising within the realm of yoga. And Hatha Pradipika, it clearly says Ashesha Taptanam Samashrayo Hatha, where the ha or tha by the both our inhalation and exhalation, and their union with the our Sushumna Nadi, and ha and tha from the Surya Nadi and Chandra Nadi. So these are the delving deeper into the Hatha Yogic or yogic tradition in terms of Hatha Yoga or Raj Yoga through Swatma Ramji. And coming back to the Patanjali Yoga Sutra, which is itself as ancient as, because one more very important thing that we are all together here, not only from the academicians, but from the Sanskritists, from the Indologists, as well as maybe from diversity field, who very much looking from the yoga from various parts, various angles, various our academic backgrounds.
So the yoga and Patanjali yoga is in Indian ancient tradition, and we must look, as I wish to attract the attention of our all who are here.